Good afternoon, dear students. I hope all of you would be enjoying very good health. Today we will start the first essay from your book, A Selection of Modern Essays. Title of the essay is Pakistan and the Modern World. This essay is basically a speech by first Prime Minister of Pakistan, Liaquat Ali Khan, who delivered it when he was invited to Kansas University in USA soon after the creation of Pakistan. So this essay is important with respect to many reasons. The very first reason, since Prime Minister of Pakistan was the first person who, after being Pakistan being established, was invited to USA, so he held greatest responsibility on his shoulders to introduce a new and emerging state to the world, because he knew that the whole of the world was holding its eye and was very keen to know about Pakistan. So he has to establish a very positive image of a new emerging state towards the world. And secondly, this essay also depicts and make and declares our first Prime Minister Liaquat Ali Khan as one of the best orators in the world, since he very successfully communicated the cause of Pakistan and how it could play its central role towards development of peace, and how world should treat Pakistan and why Pakistan is different than rest of the nations and what were the reasons behind its creation. So he was a person who successfully communicated the root causes of creation of Pakistan and was successful in establishing a peaceful future for Pakistan amongst other countries of the world. So have a look at the motive of speech, the very first thing that he presented in it, or you will learn through the passage of your essay. Reasons for creation of Pakistan, जिसमें लियाकत अली खान डिस्कस करेंगे पाकिस्तान की क्रिएशन के रीजंस को. सेकंड स्टेज हाउ वेस्टर्न वर्ल्ड शुड सी एंड ट्रीट पाकिस्तान की एस्पिरेशंस टुवर्ड वेस्टर्न वर्ल्ड एंड हाउ वेस्टर्न वर्ल्ड शुड ट्रीट पाकिस्तान, उनको किस तरीके से देखना चाहिए. एंड हाउ कैन पाकिस्तान प्ले अ सेंट्रल रोल इन एस्टैब्लिशिंग वर्ल्ड पीस, okay, since it is an emerging economy and a new state in the world order, how can it play its significant role in bringing all the world closer? पाकिस्तान का क्या रोल हो सकता है, उसको इस ऐसे में डिस्कस किया गया है, जो आप जानेंगे. इसके कुछ की पॉइंट्स हैं जो आप देख लीजिए. सबसे पहले तो लियाकत अली खान, फर्स्ट प्रीमियर ऑफ पाकिस्तान, विजिटेड द यूएसए इन 1950. 1950 में अपने यूएसए को विज़िट किया था व्हेन द कैंसस यूनिवर्सिटी कन्फर्ड ऑन हिम एन ऑनरेरी डिग्री, जहाँ पे न सिर्फ उन्होंने एड्रेस किया बल्कि कैंसस यूनिवर्सिटी ने उनको एक एजाज़ी डिग्री से भी नवाजा. There he told the Americans the reasons behind the creation of Pakistan. The very first point that he enumerated in his speech was what were the factors that led to the creation of Pakistan. कि जाहिर है कौमें बिना किसी वजह के वजूद में नहीं आ जाती, और ख़ास करके एक ऐसी रियासत जो इतने ज़्यादा स्ट्रगल और एफ़र्ट के बाद, इतने ज़्यादा ब्लड शेड के बाद वजूद में आई है, तो उसकी उस एग्जिस्टेंस के पीछे कोई वजह होगी, और इस वजह को लियाकत अली खान ने बहुत अच्छे से डिस्कस किया. At the university, he told the Americans he expected that the Americans could well realize the problem of Pakistan as they had passed from the same situations. लियाकत अली खान ने ये भी डिस्कस किया कि पाकिस्तान अमेरिका के साथ किस तरीके से टाइज शेयर करता है, उनके किस तरह से हालात और सिचुएशन सेम रही हैं, एंड दे हैव पास थ्रू द सिमिलर फ्रीडम स्ट्रगल and similar circumstances. That is why America is in a better position to understand the situation of Pakistan, its problems and crises that it has gone through, and the challenges that it has to face in future. कि इस तरह अमेरिका पाकिस्तान को इन द राइट टर्म्स अंडरस्टैंड कर सकता है और उसका केस भी प्लीड कर सकता है. Number 5, the religious, social and the economic systems of the Muslim were quite different from the Hindus. जहाँ पर उन्होंने डिस्कस किया कि मुसलमान हिंदू से, जिनसे उन्होंने आज़ादी ली है और एक अलग मुल्क का तकाजा किया है, उनसे कुछ किन बेसिस पर अलग हैं. उनके रिलीजियस, सोशल यानी कि उनके समाजी
उनके मजहबी और उनके इकोनॉमिक फैक्टर्स, उनके मौशी हालात का उन्होंने हिंदुओं के साथ कंपेयर किया और बताया कि किस तरीके से मुख्तलिफ हैं। नंबर 6, इन द यूनाइटेड इंडिया द हिंदूज वर इन मेजॉरिटी whereas the Muslims were in minority। जो एक और रीज़न जो उन्होंने डिस्कस की कि यूनाइटेड इंडिया में यानी मुत्तहिदा जो हिंदुस्तान है जिसमें हिंदूज़ भी थे, मुस्लिम्स भी थे और बाकी माइनॉरिटीज़ भी अपनी फ्रैक्शंस के अकॉर्डिंगली मौजूद हैं, उसमें हिंदूज़ मेजॉरिटी में थे जबकि मुस्लिम्स वहाँ पर एक माइनॉरिटी में है, वो अक़लियत में है, उनकी तादाद कम थी। सो डेफिनेटली जहाँ पे तादाद का तनासुब जो है वो हमवार नहीं रहता, वो इक्वल नहीं रहता, इनजस्टिस एंड अनलॉफुल एक्ट्स आर लाइकली टू अराइज। और यही एक वजह थी जिसकी बेस पे मुसलमानों ने हिंदुओं के साथ अपने अदम इल्हाक का ऐलान किया और उन्होंने एक अलग रियासत का मुतालबा किया। नंबर 7, if a government had established under one unit, it would have meant only a change of rulers for the minority। नंबर 7 पॉइंट जो है उसमें लियाकत अली खान ने जस्टिफाई किया कि ब्रिटिश वर द सोल रूलर्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट एंड दे हैड टू रूल ओवर हिंदूज एंड मेजॉरिटी हिंदूज एंड मुस्लिम्स, इट वुडंट हैव मेड एनी डिफरेंस एट ऑल। उसकी वजह क्या होगी? बिकॉज दैट वन यूनिट विच इज़ बीन एस्टैब्लिश्ड बाय ब्रिटिश would mean only a change of rulers for the Muslim as they were in minority, क्योंकि उनकी ज़्यादा सपोर्ट किस तरफ होगी? मेजॉरिटी की तरफ, एंड मेजॉरिटी वर हिंदूज़, इसलिए वो हिंदूज़ के राइट को डिफेंड करेंगे और उनकी तमाम फैसिलिटीज़ और जितने भी पर्क्स हैं they would be offered for Hindus, since Muslims are in minority they would lag behind। तो इसीलिए वन यूनिट गवर्नमेंट बाय ब्रिटिश जो थी वो मुसलमानों के हक़ में नहीं थी, इसीलिए मुसलमानों ने अपने लिए एक अलग स्टेट की डिमांड रखी। नंबर 8, द मुस्लिम्स वर मोनोथेइस्ट, दे बिलीव्ड इन द वननेस ऑफ अल्लाह एंड द हिंदूज वर पॉलीथेइस्ट, दे बिलीव्ड इन मैनी गॉड्स एंड गॉडेसेस। यहाँ पर जो एक बेसिक डिफरेंस है हिंदूज़ और मुस्लिम की, दैट इज़ कैटेगोरिकली द रिलीजियस डिफरेंस। सिंस मुस्लिम्स आर द मोनोथेइस्ट, मुस्लिम जो हैं वो मोनोथेइस्ट हैं, वो एक खुदा पे यकीन करते हैं, जबकि हिंदूज़ आर पॉलीथेइस्ट। पोली का मतलब है मल्टीपल, उनके डिफरेंट गॉड्स एंड गॉडेसेस हैं, अनकाउंटेबल हैं, उनकी तादाद समटाइम्स करोड़ तक चली जाती है। ठीक है, इसलिए मुस्लिम्स और हिंदूज़ का जो एक बेसिक रिलीजियस डिफरेंस है उसकी वजह से ये दोनों नेशन जो हैं वो कभी भी अंडर वन फ्लैग एग्जिस्ट नहीं कर सकती हैं, क्योंकि इनकी रिलीजियस कंट्रोवर्सीज, उनके रिलीजियस बिलीव्स जो हैं डिफरेंट हो जाते हैं। नंबर 9, Hindu society was divided into many classes and categories. They believed in the caste system. The Muslims believed in the equality of all the people। एक सोशल डिफरेंस जिस पर लियाकत अली खान ने एम्फोसिस किया वो ये कि हिंदू सोसाइटी उसमें क्लास सिस्टम है, उनमें कैटेगरीज बनी हुई हैं, उसमें ही उन्होंने अपनी जो पीपल हैं उनको डिवाइड किया हुआ है। हम हिंदू की 4 क्लासेस सिस्टम जो है वो जानते हैं, जिनके ब्राह्मण से लेकर उनके शूद्र तक जाते हैं उनके क्लास सिस्टम, जहाँ पे उनको उनके इकोनॉमिकल और रिलीजियस स्टेटस के हिसाब से अलग किया गया है, उनका ट्रीटमेंट भी उसी तरह का है। जबकि मुसलमानों का सोशल सिस्टम इज़ टोटल इन कंट्रास्ट। इन इस्लाम देयर इज़ नो क्लास सिस्टम। इन इस्लाम ऑल द पीपल आर कंसिडर्ड इक्वल, जहाँ पे सबके इक्वल राइट्स हैं और जहाँ पे किसी की उसकी क्लास की बेस पे उसकी डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाती है। सो इसलिए these two nations having quite opposite social standing cannot coexist as one nation। Point 10, Hindus' economic outlook was based on the unearned accumulation of wealth, whereas Muslims' economic set was based on the circulation of wealth। अब यहाँ पे जो एक बेसिक इकोनॉमिक डिफरेंस है मुस्लिम और हिंदू कम्युनिटी में, कि हिंदू कम्युनिटी में उनका जो मनी का अर्निंग और वेल्थ एक्यूमुलेशन जो है वो सारी ज़ख़ीरा अंदोज़ी पे मबनी है, जहाँ पे वेल्थ सर्कुलेट नहीं करती है। जिसके पास जितनी ज़्यादा वेल्थ है वो उसका हाकिम होता है और वो उसको जो है अपने पास स्टोर करते हैं, दे कीप ऑन एक्यूमुलेटिंग देयर वेल्थ। ऑन द अदर हैंड
द मुस्लिम्स इकोनॉमिक रूल इज़ सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ। हमारे यहाँ इस्लाम के रूल्स हम जानते हैं कि अगर हमारी ज़रूरी पैदावार है तो उसमें से उशर देना हमारे लिए ज़रूरी है। इसी तरह अगर आप साहिब निसाब हैं तो हमारे लिए ज़कात को काटना जो है वो बहुत ज़रूरी है। जहाँ पे वेल्थ इज़ नॉट ओनली सर्कुलेटेड बट इज़ ऑल्सो डिलीवर्ड to less privileged sections of the society, whereas it is quite opposite in the Hindu nation, where accumulation of wealth is considered as target